Hello, guys, welcome back to Double Take Reactions. Today, we are watching the most awaited, one of the successful movie in the recent Bollywood history, Durandar The Revenge. Durandar 1 was a massive hit, industry hit. So, Durandar 2 ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ they were anticipating and waiting very eagerly. So, finally, it is here. Theatric ಬಂದಾಗ movie it was going bonkers in the ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ದುರಂಧರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಗೋನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದುರಂಧರ್ 2. I am so excited to watch this one. And how about you? You're excited? I am too. So super excited. First movie, you know that, right? I almost puked. So let's see what happens in this time. Okay. Without any further ado, let's get into it. Look how happy he is. Allah, Mm. innocent, happy. Look at his innocence, man. Family photo, it was nice. ನಿಂದು ಒಂದು ಅದೇ ತರ ಫೋಟೋ Chapter ಇತ್ತಲ್ಲ. 1 again. A burnt memory. Nanda, ಹ್ಮ್ inspired by incredible true events. अंदर जाके बोली ना कुछ, मैं आप ही गल कर लूंगा। भाई आतिफ भाई देखो कौन आया है। ಓ ಹೋ 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 ಹೋ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಹ್ಮ್ मैगी का बेटा अकेले आया है? बाप कहाँ है तेरा? वो जी पापा ही तो आना चाहते थे जी, पर रात को ना इतना कुछ ज्यादा ही हो गया, बेचारे से उठ भी नहीं पा रहे थे। अरे बाप को बोल, अपना ही सामान इतना फूकेगा तो बेचेगा क्या? घंटा मेरा। जाइए जी। ऊपर चलो जाओ। ओ अंकल जी, क्या हाल चाल ने? पैर पहनने घुटने ठीक है आपके? अब सामान मंगाया जी पापा जी ने। इतना सामान? 4.25 किलो चरस, मंदाकिनी 2.5 किलो, अफीम, लॉलीपॉप, हसीस, साजन, खरगोश। अजी बॉर्डर पर चौकसी बहुत बढ़ा दिया जी फौज ने। पंजाब में माल आ ही कहाँ रहा है जी अब? इसमें से 2 आइटम नहीं है हमारे पास। अगले महीने की 9 तारीख को आएगा नेपाल बॉर्डर से, तब ले जाना। ठीक है जी। बाकी सामान ले जाओ, दे दे उसको। पैसा लाए हो? आप पैसा लाए जी, आप देखो जी। जाओ ले लो। अरे जाओ ना। ठीक हाँ है। नहीं, कुछ और भी मंगवाया, पापा ही ने मंगवाया जी, पापा ने। ये कैसे चाले? ये क्या चाहिए? क्या है जी, वो नशेड़ियों ने ना बड़ा तंग कर रखा है जी। 2-2 किलो माल ले जाते, पैसे नहीं देते। अब पापा जी ने बोला पैसे निकलवाने के लिए, धमकाने के लिए हथियार रखेंगे। ये कौन है? ये जी मेरा बचपन का दोस्त है जी, जसकीरत। वो ऐसी छुट्टी पर आया था तो ले आया जी साथ। क्या करता है? मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा है जी। मिलिट्री में? हाँ कल देखो भोसड़ी के अभी झाड़ के बाल नहीं निकले, घुसे हैं मिलिट्री में जाएंगे। ए, जा ले ले। हाँ जी। चल निकल, और पैसे नीचे दे जाना। हाँ मुझे अगली बार बाप को नहीं भेजा ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त के चूतड़ में घुसेड़ देंगे। And Durandar 1 songs were awesome. All the songs were so awesome, right? Short songs but nice song. ಹ್ಮ್ ਜਸਕਿਰਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ। ਆ ਜਨਮ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। वाहिगुरु जी की मर्जी रही तो अगले जन्म में देश को भी संभालूंगा। कुछ असलियत से शादी करेगा ना यार। Somebody took his family hostage. That's why he is going here, I think.
ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತನಾ, ಸೊ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ಸತ್. Okay, okay. सुनती हैं आ गाना मैंने बहुत बढ़िया लगता है भाई। MLA बंसी का ब्याह तो हो गया, बस इस कमरे से ना अपनी अभी बढ़िया यात्रा जुड़ी है। पैर कितने मेरी हो? पैर कितने मेरी? दिमाग खराब हो गया मेरी। पैर कितने? दस्ता तेनू मार दवा। ಓ पैर कितने मेरी? दस्ता तेनू मार दवा। ले कर मेरी वाला बंदूक क्यों तानी? मेरी पैर कितने? पैर चोट। ओए अंदर से मेरी पैर कितने? पैर चोट। Ooh. Yeah, he's hurt. ಇವನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರ ಇವ್ರು? Probably, ಹಾ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರಾಥಲ್ ಬೈ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಆ ಅದೇ The actions, I mean the brutality is justified here ಆ because in this situation any guy would have this aggression and adrenaline. ಆ You definitely nice. ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಐತಲ್ಲ ಅದಂತ. Ah, because ಯಪ್ಪ at this situation the brother obviously doesn't care how he gonna kill. He'll just kill. He'll just attack any part that is exposing the any part of the enemy. So Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ತ ನಾನು ಇವಾಗ. ती होण दिया जस्से किथे है? किथे माई है? माई है छुपया है। तेरी प्यारी फुदी बैठ चोया। मेरी बहन का है टीटू। बैठ चल। जो तेरी बड़ी बहन की हालत कितनी है ना, ओए छोटी बहन की करांगा। तू तय चले ले बैठ जस्सी। तेरी बहन का है मदर चोर। बोल बोल टीटू मेरी बहन का है। बोल मदर चोर बोल। मेरी बहन का है टीटू। ಇಬ್ರುನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುದಾ? टीटू टिल्लू बम टिल्लू बम टिल्लू बम। Maybe, I don't know. ಅವನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ तुझे माँ की कसम बात कर दी। जैसी बचपन में खेलते थे यार अप्पा यार, तेरे याद है? जैसी मान जा यार।
गलत कर दिया तेरा प्रवाह जैसी 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 मेरी बात सुन जैसी ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೆತ್ತಿಂದ ಹಾರಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡೆ. That's why he went to the prison. सर एक because- छोटे से लैंड डिस्प्यूट के पीछे एक्स गैंगस्टर टर्न्ड एमएलए सुखविंदर ने जसकीरत के पिता रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन सिंह को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। Okay, it was from here. It was और started उन्हें from here. अधमरी हालत में उन्हीं के खेत में फांसी पे लटका दिया सर। जसकीरत की दोनों बहनों हरलीन और जसलीन को सुखविंदर और उसके परिवार के 12 आदमियों ने मिलकर ब्रूटली गैंगरेप किया। और जसलीन को अगवा करके अपने ही खेत के पंप हाउस में बंदी बना लिया। और जब ये सब हो रहा था तो 21 साल का जसकीरत एक सच्चा देशभक्त रामगढ़ कैंटोनमेंट में फौजी बनने की तैयारी कर रहा था। जसकीरत की माताजी मिसेस प्रभनीत कौर, इन्होंने हर संभव कोशिश करी कि एमएलए सुखविंदर के खिलाफ कम से कम पुलिस कंप्लेंट दर्ज तो हो, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस केस में किसी भी पुलिस वाले ने हाथ डालने से मना कर दिया। आप बताइए सर, अथॉरिटीज जिनका काम है देश के मासूम नागरिकों को न्याय दिलाना, जब वो इस तरह हमें दुत्कारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सर? आप क्या बोल रही है वीना जी, क्या बोल रहे हैं आप? इसको तो फांसी होनी चाहिए। योर ऑनर, इस केस में जसकीरत को सजाए मौत नहीं दी गई तो सर जनता का भारतीय कानून से तो हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹಂಗಾರೆ? मुझे लग That's रहा what है happened. जज माहेश्वरी अपेलेंट के फेवर में जाने वाले हैं और तुम्हें फांसी हो सकती Because anyhow, killing all the family members is also not right. But on ಹಾ, humanitarian ಹೌದು. ground, it is ಮತ್ತೆ- justified. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ತಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನಾರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ. हमेशा पढ़ाई पूरी करना। ಅವನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನ್ಯೂ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. चिट्ठी लिखता रहूंगा। ಅದೇ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೈಟ್. ಹಾ, ಐ ಟೋಟಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕೇಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ ಅದೇ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರೂವನ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಜಿತ್ ಡೋವಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಂತ ಹೆಸರು ಅವಂದು? ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್. ಹಾ, ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಜಸ್ಕಿರತ್. Who is here? Oh, okay. Ajay Sanyal did this. Staged it. Okay. I thought they are taking revenge. Okay, I'm clear.
he recognized him because obviously everybody knows who is Ajay Sanyal. ಇವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ರಿವೆಂಜ್ ತಕೊಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್. Ah. मुझे जानते हो? Obviously. अजय सान्याल सर. गुड. ये हैं सुशांत बंसल, ये हमारे साथ काम करते हैं. मुझसे क्या काम है सर? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं. भारत सरकार वो सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं. उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा. जो हम कहेंगे वो तुम करोगे. हम मर्द हैं जसकीरत. पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना. अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए. ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता. और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी. इनफैक्ट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विद यू. ये समंदर बहुत गहरा है. जसकीरत, जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना. तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है. घायल हो इसीलिए घातक हो. कराची में तुम्हारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसको सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी. तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट इफ यू आर एवर इन द सूप ही विल टेक केयर ऑफ यू. सब काबुल फ्लैट का बंद हो गया है. हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नसर और सब्र. दोनों की धार हमेशा तेज रखना. इस नाम का मतलब जानते हो? शेर. बब्बर शेर. पूरे जंगल पर राज करना है. जय हिंद. जय हिंद. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗ ಆತಿತ್ತದು. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಕ್ಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅವರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕಣ. और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि अब जाके असली हमजा पैदा हुआ है. जब मैं हिंदुस्तान छोड़ कर आया था मुझे लगा था कुछ साल यहाँ पर काम करूंगा, किसी न किसी तरह वापस घर जाने का मौका ढूंढ लूंगा. और अब मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे, खत्म हो गए. बचा तो सिर्फ जुनून, अपने देश को सलामत रखने का जुनून. और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहन कर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है. आप कहां से हैं आलम भाई? आज तेरा दिन था. किस दिन जब दिल भर आएगा तो बताऊंगा. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಕ್ಸೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದೆಮ್. ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಲೂಸಿಫರ್
Lucifer, Morning Star. ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದಾ ದ ಕಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಕೇತ್. ರೇಮಂಡ್ ಡಕಾಯ್ತ್. ಅರ್ಷದ್ ಪಪ್ಪು ready to roll out. ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಇಸ್ ಜಾಕ್ಡ್. ಈಗ ಇವನ್ ಹರ್ಷದ್ ಪಪ್ಪು ಮೇನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ರೇಮಂಡ್ ಡಕೈಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. अमृतसर में बड़ा हमला कर 26/11 जैसा बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने ही वाले थे कि खैर एसपी रहमान को क्यों मारा? बदला किसका? बड़े साहब का। एसपी मुझे पता है इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल ऐसा है बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC 814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से मांगा, मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे, मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। तो हमने भी पता लगाया और हमारी किस्मत थी साला सरदार निकला। बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअद भी कर दी है, ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया। ಯಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂನ್ ಸಾಯಿಸ್ರಲ್ಲ, lynching ಹೌದು. ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಹಿಂಗೇನೆ ಸೇಮ್ आप सिगरेट फेक बड़े narrative style से ಮಾಡಿದ್ದು. बुझाते हो। एसपी एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके यह हतूत फतूत शहतूत जैसी है हरकतें ना करें बिना हमारी मंजूरी के। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लगा कि बलोचों की बात जानता था, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और सिर्फ तू ही नहीं सर, पूरी लियारी हमसे शेरे बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उजैर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स घूमते हैं उसके साथ। तुझे लगता है एसपी ने खुद किया? एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी, उसने दी। रिजवान ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವಾಗ ಟೀಮಿಗೆ. सलाम भाई। मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई, रहमान भाई पर हमला करने की कालीम जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಜೈರ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥ್ರೋನ್, ರೈಟ್? ಕರ್ಕ ಬಂದು ಕೂರ್ಸೋದಿವ್ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್, 2 ಗ್ರೆನೇಡ್.
ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಇವಾಗ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. कोई एसपी फोन क्यों नहीं उठा रहा? चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। ಆ ಸಾಕ್ಸ್ ಕಣ ಫುಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಟೈಟ್ ಅದು. ऑपरेशन करने की बात कर रहा था एसपी। ಆಪರೇಷನ್ ಲೇಯರಿ. ಡ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೇಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೇಮ್. ವಾ एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमीन साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा के निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लियारी की नाकाबंदी टाइट रखी, कोई माया पठान बचकर निकल ना जाए। मुझे पता है तू पठान है, माइंड न करी यार। पाकिस्तान की सवारी याद है? कैसे निकलेगा नहीं? ವಾ इसकी माँ का चाय नहीं पीने देते फड़वे। ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟತ್ತು ಈಗ ಅದು. ಹಾ ಹಾ और सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अरे क्या करे बुढ़ी के? नहीं तुझे नहीं कहना। इसका अच्छा खासा मेरी मासूम सी बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ। पता नहीं कहां से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया। और अब उजैर के साथ पूरी लियारी में इसने कत्लेआम मचा रखा है। अरे मैं तो इस फिराक में हूं कि मुझे मौका मिले और इन दोनों लालों को मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊं। तू काम कर, मेरी बात मान। तू अभी के अभी लियारी से निकल, इंतजाम मैं करता हूं तेरा। तू वैसे है कहाँ? ಅಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ. ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು. बलूच या पठान? पठान। अरशद पप्पू का है? पता नहीं सर। मैं अपनी जाती सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे हैं। लेकिन एक सुअर नुमा इंसान ने मुझे कभी कहा था कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। तो ये सियासी बात है लाले। रोता क्यों है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। आइए ये लड़कों को तो मार ही देंगे भाई, और साला अरशद खुद नहीं मिल रहा है। रिजवान उसके सारे अड्डों पर नजर गड़ाए बैठा है। पता नहीं लियारी के किस कोने में छुपा है साला। जला दो लियारी। ಎಂತ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿನಿ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಆತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡಮಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡೆ ಉಳಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿದು ಒಂದೇ ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ. ಹಾ ಇವನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಲೆಹಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅರ್ಷದ್ ಪಪ್ಪು? आप जैसा ಅವನ್ ಇದ್ದ ಅನ್ಸತ್. में आए तो बाप बन जाऊं। ಇವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ಪೀಸ್. अरशद तू ठीक तो है ना बच्चे? जमील भाई, मेरी सारी की सारी दुकानें जला दी हैं। वो कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझे किसी भी तरह कराची से बाहर निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, तूने सुनी नहीं मेरी। देख तुझे कराची से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तू पहले लियारी से तो निकल।
सारी की सारी सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है हरामखोर है एसपी ने। तो मैं काम करता हूँ, अपनी सायरन वाली गाड़ियां भेजता हूँ। किसी के बाप में दम नहीं उन गाड़ियों को रोकने के लिए। It is easy to spot. हमारी दूध फैक्ट्री में छुप जाओ, ठीक है बेटा? डरा नहीं, जमील मामू जिंदा है, बैठा है। ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೆಗಿದ. ಅವ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಕಣ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ ಪಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಮ್ಸಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾರಿದು? ಉಜೇರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಉಜೇರ್ ಬಲೋಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸಾರಿ ಹಮ್ಜಾ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ, ಓ ದೇವ್ರೆ. ಅದು ಇವನ್ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ್ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂತಿರೋದು, ಅವ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಸಾಯಿಸಿ. ಅಪ್ಪ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಗುರು. ದೇ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. दैट इज oh god, thank you. हमें अभी भी खबर मिली है कि उजैर बलोच ने यह ऐलान किया है कि आज वक्त ज़वाल से लियारी का कर्फ्यू उठा दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें दोबारा खुल सकती हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಲಿಹಾರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಲೋಚ್. Even though Rahman Dekar is gone, we are still ruling here. कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझ आई बात? No. Yeah. ಬೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿ ತಕೊಂಡಿದ. I think this is also what? रहमान भाई को मार के लियारी पे कब्जा कर लेगा, यही लगा था ना तुझे? बोलना फड़वे। लियारी में पठान गैंग का नामो निशान खत्म। This was also, I think, real incident. He had played football with the head of someone. ಓ, जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। बतके तेरी फोटो में वाड़ दूंगा मैं। पैंचम मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है, सर काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। मायोवे जमील, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी पर के नहीं? गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, उनको बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम अपनी प्लानिंग इत्मीनान से कर पाएंगे। See, ये बुरा नहीं है, they don't even hesitate to do anything. तू लग जाए इस काम पर।
मैं तो कहता हूँ लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। एक काम कर, सबसे पहले पीएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हम सकेंगे। निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। वैसे ये जहर का क्या करना है? मरवा दो मायूबे को। जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की माँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अगर उजैर भी मर गया तो कराची में आग लग जानी है। तो बैंचो करें क्या? एक तरीका है, उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेज देते हैं भैंचोद को। जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे, हमें क्या, इल्जाम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं। सही है, ऐसे ही करो।